یہ شہر کے ایک مہنگے ریسٹورینٹ کا منظر تھا، جہاں برقی کمکموں کی روشنی میں لڑکے اور لڑکیاں رنگ برنگے لباس تن زیب تن کی ایک پرائیویٹ پارٹی میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ ہر کسی کے ہاتھ میں سافٹ ڈرنکس کے گلاس تھے، میوزک اپنی پوری آواز میں چل رہا تھا اور لوگ ڈانس کر رہے تھے۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی، اتنے میں ریسٹورینٹ کے اندر ایک 28 سالہ پرکشش مرد داخل ہوا، جس کی گہری کالی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں۔ اندر کا ماحول دیکھتے ہی اس کا خون کھول اٹھا اور ماتھے کی رگیں ابھر آئی تھیں، مگر بہت مشکل سے خود پر قابو پاتے ہوئے وہ کسی کو تلاش کرنے لگا۔ چند منٹ کی تلاش کے بعد وہ اسے نظر آ ہی گئی۔ ایک کارنر ٹیبل پر وہ بلیک جینز اور وائٹ ٹاپ میں بغیر کسی دوپٹے کے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، چہرے پر سرخ لپسٹک سجائے۔ وہ بڑی نزاکت سے جوس حلق سے نیچے اتار رہی تھی۔ اسے اس حلیے میں دیکھ کر دانیال شاہ کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا۔ وہ اچانک ہونے والی اس افتاد پر گھبرا گئی، مگر جیسے ہی اس کی نظر دانیہ شاہ کے چہرے پر پڑی، اس کے حواس جیسے کام کرنا چھوڑ گئے۔ وہ کس قدر غصے میں تھا، یہ اس کے چہرے سے ہی صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ دانیال نے بنا کچھ کہے اس کی کلائی پکڑی اور اسے ریسٹورنٹ سے باہر کی جانب لے جانے لگا، مگر راستے میں ہی ایک بگڑا ہوا رئیس زادہ آ کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم میری فرینڈ کو کس کی مرضی سے یہاں لے کر جا رہے ہو؟ اپنے گلے میں چین گھماتے ہوئے وہ انتہائی بدتمیزی سے بولا۔ دانیہ شاہ کا ضبط پہلے ہی جواب دے چکا تھا۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار مکہ اس لڑکی کے منہ پر جا لگا۔ پورے ریسٹورنٹ میں یکدم سکوت چھا گیا۔ سب نے حیرت اور بے یقینی سے یہ منظر دیکھا، جبکہ وہ خود بھی خوف سے بالکل ساکت ہو گئی تھی۔ اس لڑکے کے سارے دوست آ کر دانیال کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو دوسری طرف دانیال کے گارڈز بھی فوراً اس کی حفاظت کے لیے آ پہنچے۔ اتنے سارے گارڈز کو دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ حیران رہ گئے۔ دانیال شاہ آگے بڑھا اور اس امیر سادی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد لہجے میں صرف ایک فقرہ ادا کیا۔ دانیال شاہ کو اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، یہ تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی آنکھوں سے ایسی آگ برس رہی تھی جو سامنے والے کو جلا کر راکھ کر سکتی تھی۔ اس کی کلائی غصے سے دبوچتے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ لیے باہر نکل گیا، غصے سے اسے کار تک لایا اور تقریباً پٹکنے والے انداز میں سیٹ پر بٹھا دیا۔ پھر دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ وہ اچھل کر رہ گئی تھی۔ گھوم کر دوسری طرف آیا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور ایک کرخت نظر اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی پر ڈالی۔ تمہارا دماغ کام کرتا ہے یا نہیں؟ کتنی بار تمہیں پیار سے سمجھایا ہے کہ سدھر جاؤ دامل، مگر نہیں، اس پر تمہیں لگامیں ڈالنی ہی پڑیں گی۔ آج وہ بہت زیادہ غصے میں تھا، ورنہ ایک وہ کول پرسن تھا۔ ایک ایک لفظ چبا کر کہتے ہوئے اس نے اپنی توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کی اور گاڑی فل سپیڈ سے بھگا کر لے گیا، جبکہ اس کے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں بھی آ رہی تھیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد یہ ساری گاڑیاں شاہ حویلی میں داخل ہوئی۔ دانیال نے پچھلی سیٹ پر پڑی اپنی چادر اٹھائی اور اس کی طرف پھینک دی۔ اس نے بنا کچھ کہے وہ چادر اپنے گرد اوڑھ لی۔ کم از کم وہ ایسے کپڑوں میں ماموں اور ممانی کے سامنے نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اپنی ماں کے سامنے بھی ایسے لباس میں نہیں جا سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے چادر اپنے گرد لپیٹ کر خود کو ڈھانپ لیا۔ دانیال نے دوبارہ غصے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لیے حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی پپھو اور بی جان جو دانیال کی ماں بیٹھی تھی، اس نے غصے سے اس پپھو کے پاس صوفے پر بٹھایا اور سخت لہجے میں بولا، یہ حالت دیکھ رہی ہیں آپ اس کی پپھو؟ آج تو حد ہی ہو گئی ہے، یہ ان فحاش لڑکوں میں بیٹھی ہوئی پارٹیاں کر رہی تھی۔ اتنی بار میں نے سمجھایا ہے کہ چھوڑ دے یہ کام، مگر اس بار میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں نکاح خواہ آئے گا، اس کا حلیہ چینج کروائیں ابھی اور اسی وقت۔ یہ میری بیوی بنے گی۔ سختی سے اپنا حکم سناتا ہوا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ دامل کو لگا جیسے اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ ماں کے بازو ہلانے پر وہ ہوش میں آئی۔ قسم کھا رکھی ہے مجھے اس عمر میں زندہ زمین میں گاڑنے کی، انہوں نے کچھ تکلیف اور غصے سے کہا تو دامل کو اپنے سینے میں ایک عجیب سی تکلیف اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے تڑپ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ اگر چاہتی ہو میں زندہ رہوں تو خاموشی سے نکاح کر لینا، ورنہ اپنی ماں کا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ پپھو کی بات نے جیسے اسے بالکل بے بس کر دیا تھا، مگر وہ پھر بھی نفی میں سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کوئی نکاح نہیں کروں گی،
मैं किसी की मर्ज़ी से ज़िंदगी नहीं जीऊँगी। ये मेरी ज़िंदगी है और मैं इसे अपनी मर्ज़ी से ही जीऊँगी। वो दानियाल से भी ऊँचे लहजे में चीखी और इससे पहले कि अपने कमरे में गायब होती, सामने ही दानियाल को खड़ा देखकर रुक गई। उसकी आंखें आज हद से ज़्यादा संजीदा थीं। अगर तुमने ये निकाह नहीं किया तो तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट सील करवा दूँगा। तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद, तुम्हारा खाना-पीना तक बंद कर दूँगा। अब फैसला तुम्हें करना है, अपनी ज़िंदगी सुकून से जीना चाहती हो तो निकाह कर लो, वरना तुम्हारा जीना हराम कर दूँगा। उसके करीब पहुंचकर वो उसके कान में गुर्राया और फिर अपने कमरे में गायब हो गया। दामिल का जी चाहा कि वो दानियाल का सर फाड़ दे, मगर वो जानती थी कि दानियाल शाह जो कहता है वो कर गुजरने की ताकत भी रखता है। इसीलिए अगले आधे घंटे बाद वो खामोशी से उसकी बीवी बन चुकी थी। निकाह के फौरन बाद ही वो उठकर अपने कमरे में आ गई। अपने बाप की तस्वीर हाथ में लिए इस वक्त उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। काश हमें छोड़कर नहीं गए होते तो हम इस मुसीबत में ना फंसते। उसके लहजे में इस वक्त सिर्फ अजियत और बेबसी थी। ये 1 साल पहले की बात थी, जब उसके बाप का इंतकाल हो गया था। उसकी माँ अकेली थी और ददियाल वालों ने भी कोई साथ नहीं दिया था। इसीलिए इब्राहिम शाह ने अपने घर ले आए थे। अपने बाप की मौत के बाद दामिर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगी थी। इन्हीं दिनों उसकी दोस्ती रामीन से हुई। रामीन एक अमीर खानदान की मगरूर सी लड़की थी, मगर उसने दामिल को हौसला दिया और दामिल को वो इस वक्त अपनी सबसे बड़ी मसीहा लगी थी। तुम फिक्र मत करो, जाने वाले चले ही जाते हैं। तुम अपनी जिंदगी एंजॉय करो और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कह सकती। मैं तुम्हें तुम्हारे गम से निकलने में मदद करूंगा। रामीन ने उसका हाथ पकड़कर उसे यकीन दिलाया तो दामिन को कुछ सुकून महसूस हुआ। कुछ ही दिनों में उनकी दोस्ती बहुत गहरी होगी। यार, ये क्या तुम हर वक्त बहन सी बनी रहती हो? कोई अच्छे से कपड़े पहना करो। इस तरह तो लोग तुम्हें देखते ही नहीं, सब तुमसे दूर दूर भागेंगे। एक दिन रामीन अपने साथ जबरदस्ती शॉपिंग पर ले गई और उसे बहुत सारे फैंसी ड्रेसेस, परफ्यूम्स, जूते और ज्वेलरी समेत बहुत कुछ गिफ्ट किया। दामिल मन्ना करती रही, मगर रामीन ने एक ना चलने दी। अरे मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, दोस्तों को मना नहीं करते। चलो शाबाश, रख लो। दामिन ने मुस्कुराकर सारे गिफ्ट्स रख लिए। उसके बाद वो हवेली में भी अपनी मर्जी के कपड़े पहनकर घूमने लगी। एक दिन तो वो नाइट ड्रेस में ही कमरे से बाहर निकल आई। ना कोई दुपट्टा ले रखा था और ना ही उसे इस बात की परवाह थी। दानियाल जैसे ही डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए आकर बैठा, दामिल को इस हुलिये में देखकर उसे शदीद शर्मिंदगी महसूस हुई। ये तुमने कैसे पहन कपड़े पहन रखे हैं? कम से कम अपना पहनना ओढ़ना तो ठीक रखो। उसने कुछ नरमी से संजीदगी से उसे हदायत की, मगर दामिल ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। जो लड़की पहले यूनिवर्सिटी बड़ी सी चादर ओढ़ कर आती थी, अब उसका दुपट्टा सिर्फ गले में आ चुका था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी लड़कों से दोस्ती होने लगी। फिर वो पढ़ाई के बजाय दोस्ती और पार्टियों में मसरूफ होगी। दानियाल ने कई बार उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। वो हर बार हूँ हाँ करके बात टाल देती, मगर इस बार तो हद ही हो गई थी। दानियाल का एक दोस्त पास ही रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था, जहां उसने दामिल को देखा और फौरन दानियाल को फोन करके इतला दी। बस फिर क्या था, दानियाल फौरन उसे लेने रेस्टोरेंट पहुंच गया, मगर वहां का मंजर देखकर जैसे उसके अंदर किसी ने चिंगारियां भर दी। वह जानता था कि दामिल से उसका कोई बाकायदा रिश्ता नहीं है, सिर्फ कजिन होने की हैसियत से वो उस पर इतना रौब और इतनी सारी पाबंदियां नहीं लगा सकता। इसीलिए आज वो फैसला कर चुका था कि उसे एक मजबूत रिश्ते में बांध लेगा, और वाकई ही वो उसे अपने निकाह के बंधन में बांध चुका था। वो बहुत नरम मिजाज और तहम्मुल पसंद इंसान था, मगर आज वहाँ का माहौल और शराबनोशी देखकर उसका सारा ज़ब्त टूट चुका था। दूसरी तरफ दामिल इस वक्त अपनी दोस्तियों और यारियों में दानियाल को गलत समझ रही थी। वो कहाँ जानती थी कि वो तो उसका रखवाला है और जो कुछ कर रहा है सिर्फ दामिल की भलाई के लिए ही कर रहा है। वो उनके खानदान की बेटी थी, उनकी इज्जत थी, और दानियाल के नज़दीक खानदान की इज्जत और दामिल की हिफाजत बहुत अहम थी। वो अपने बाप के तस्वीर को देखते हुए अब भी सारे शिकवे कर रही थी कि इसी वक्त दानियाल कमरे में दाखिल हुआ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शायद भूल गई हो कि तुम मेरी बीवी बन चुकी हो। उठो और मेरे कमरे में चलो। उसने काफी गुस्से से कहते हुए दामिल का बाजू पकड़ लिया, तो दामिल के अंदर जैसे आग भड़क उठी। तुम होते कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले? कह दिया ना अपनी मर्जी करूंगी।
وہ غصے سے چیخی تھی۔ اس ایک سال میں وہ سارے لحاظ بھول چکی تھی۔ دیکھو دامل، میں بہت عزت سے مخاطب ہو رہا ہوں، لیکن اگر تم نے میری سختی دیکھنی ہے تو شوق سے دکھا سکتا ہوں۔ اس نے اتنی سختی سے کہا کہ دامل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اسے خاموش دیکھ کر دانیال نے دوبارہ اس کی کلائی تھام لی اور اسے اپنے کمرے کی طرف لے کر بڑھ گیا۔ وہ اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کرتی رہی، مگر دانیال کی گرفت مضبوط تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ لاک کیا اور اسے بیڈ کے قریب چھوڑتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، خبردار اس کمرے سے میری اجازت کے بغیر نکلی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے سختی سے تنبیہ کرتے ہوئے وہ اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ دامل فوراً اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ باہر سے لاک تھا اور چابی بھی شاید دانیال اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ دروازہ اندر سے نہیں کھل رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ ابھی اسی وقت دانیال شاہ کی جان اپنے ہاتھوں سے لے لے۔ اس کا موبائل بھی اسی کمرے میں رہ گیا تھا۔ مرتی تو کیا نہ کرتی۔ آخر کار وہ بیڈ پر لیٹ گئی، مگر ایسے انداز میں کہ دانیال کے لیے بیٹھنے کی جگہ بھی نہ بچی۔ ابھی کچھ عرصے پہلے تک وہ ہاسٹل چلی گئی تھی، جہاں اپنی مرضی سے رہ سکتی تھی اور اپنی زندگی اپنے انداز میں گزار سکتی تھی مگر دانیال شاہ کے نام کا یہ رشتہ اس کے گلے میں ایسا توق بن کر پڑ گیا تھا کہ اسے سکون سے کوئی کام کرنے ہی نہیں دیتا تھا۔ 6 ماہ پہلے ماموں ممانی اور ماں کے ساتھ ساتھ دانیال کی نصیحتیں اور ہر وقت کی سمجھائیاں اس کے اعصاب کو پوری طرح جھنجھوڑ رہی تھی۔ اسی لیے اس نے رامین کے مشورے پر ہاسٹل میں شفٹ ہونے کو ترجیح دی تھی۔ اماں، میں کہہ رہی ہوں، گاؤں آنے اور جانے میں بہت دیر لگتی ہے، میری پڑھائی کا بہت نقصان ہوتا ہے اور میں تھک بھی جاتی ہوں۔ ویسے بھی ہاسٹل تو یونیورسٹی کے اندر ہی ہے، میں وہیں ایسے آیا جایا کروں گی تو زیادہ آسانی رہے گی۔ پلیز، میں پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے وہاں جانے دیں۔ اس حویلی میں رہ کر میرا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی ماں کو منایا تھا اور پھر جا کر وہ ہاسٹل میں رہنے لگی تھی۔ ہاسٹل میں رہنا تو ایسا تھا جیسے وہ ایک الگ ہی دنیا میں آ گئی ہو۔ وہاں اسے سکون ہی سکون محسوس ہوتا تھا، مگر اس کے لیے یہ حویلی کسی قید خانے سے کم نہیں تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جلد از جلد وہ یہاں سے نکل جائے گی۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ 12 بجے کے بعد دانیال اسٹڈی روم سے باہر نکلا اور ایک نظر سوئی ہوئی دامل پر ڈالی۔ وہ سوتے ہوئے کتنی معصوم لگ رہی تھی۔ 24 سالہ دامل، میران خوبصورتی اور معصومیت کی اعلیٰ مثال تھی۔ دانیال جانتا تھا کہ وہ دل کی بہت معصوم ہے، بس غلط صحبت نے اسے غلط راستے پر چلنے پر مجبور کر دیا ہے، مگر وہ اسے سنوارنا اور صحیح راستے پر لانا چاہتا تھا۔ ابراہیم شاہ کی ایک ہی بہن تھی اور دانیال بھی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ اس گاؤں کا سردار تھا اور آنے والے برسوں میں دانیال شاہ ہی اس گاؤں کی سرداری سنبھالنے والا تھا۔ سرداری کے ساتھ ساتھ وہ ایک اعلیٰ عہدے پر سرکاری آفیسر بھی تھا۔ دامل کے ساتھ بچپن سے اس کی کوئی خاص دوستی نہیں تھی، مگر وہ ہمیشہ سے معصوم تھی۔ اس کی معصومیت دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب دانیال کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا اور اب وہ اسے پسند کرنے لگا تھا۔ مختصر یہ کہ اب دامل اسے بہت اچھی لگتی تھی، مگر وہ اسے کہہ نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہی نہیں آتا تھا۔ اس نے ایک نظر پورے بیڈ پر ڈالی، جہاں وہ جان بوجھ کر آڑی تیری ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ دانیال جانتا تھا کہ وہ اسے پریشان کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس لیے مسکرا کر نفی میں سر ہلاتا ہوا واپس اسٹڈی روم میں چلا گیا اور وہیں کاؤچ پر لیٹ گیا۔ حویلی پر اگلی صبح اتر چکی تھی۔ جب دامل کی آنکھیں کھلی تو دانیال فریش ہو کر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر رسمی سا مسکرایا۔ گڈ مارننگ بیگم، نیند پوری ہو گئی ہے تو اٹھ جاؤ، ناشتہ کرنے چلتے ہیں۔ تمہاری وجہ سے میں کمرے سے باہر نہیں نکلا، ورنہ سب کیا سوچتے ہوں گے کہ ایک رات کی بیوی کو چھوڑ کر باہر آ گیا ہے۔ وہ بالکل نارمل انداز میں بات کر رہا تھا، مگر دامل کو لگا جیسے وہ اسے طنز کر رہا ہو۔ بنا کچھ کہے وہ اٹھی، منہ ہاتھ دھویا اور باہر نکل آئی۔ بالآخر پورے 12 گھنٹے بعد وہ اس کمرے سے آزاد ہوئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد فوراً اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ دانیال شاید کوئی کال سننے کے لیے باہر گارڈن میں چلا گیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنا موبائل ڈھونڈا اور رامین کو کال ملائی۔ یار، تم ٹھیک تو ہو؟ میں کل بہت پریشان ہو گئی تھی۔ تمہارا وہ کزن کتنے غصے میں تمہیں وہاں سے لے کر گیا تھا، مجھے بہت فکر ہو رہی تھی۔ کال ملتے ہی دوسری طرف سے رامین کی فکر مند آواز سنائی دی۔
तो दामिल की आंखें भर आईं। मैं बहुत मुसीबत में आ गई हूँ रामीन। उस बदतमीज ने कल रात मुझसे जबरदस्ती निकाह कर लिया है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अगर मैं इस हवेली में रही तो मेरा दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगी, प्लीज। वो उसके तरले करने लगी। रामीन ने उससे हौसला देते हुए कहा, फिक्र मत करो, फिलहाल तुम अपना मूड नॉर्मल रखो, 2-4 दिन बर्दाश्त करो, फिर तुम यूनिवर्सिटी आना, उसके बाद हम कुछ सोचते हैं। रामीन की हदायत पर उसने इस बात में सर हिलाया, और वाकई अगले 2 दिन तक उसने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव किया। मगर इन 2 दिनों में उसने दानियाल शाह को मुंह तक नहीं लगाया। दानियाल को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि वो इतने सुकून से बैठ गई है। उसे यकीन था कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है, मगर दानियाल ये नहीं जानता था कि उस पर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। आज निकाह के पूरे 3 दिन बाद वो पिस्ता कलर की फ्रॉक पहने कमरे से बाहर निकली थी। वह जानती थी कि अगर उसे यहाँ से भागना है तो उसे अपना हुलिया ठीक रखना पड़ेगा। किसी को उस पर शक नहीं होना चाहिए। अच्छी बच्ची की तरह खामोशी से बैठकर उसने खाना खाया। आज तो उसका दुपट्टा भी गले में मौजूद था। आज वो एक के बाद एक दानियाल शाह के साथ साथ पुप्पो बीजान और आगा जान को भी झटके देने वाली थी। 2 दिन बाद से मेरे पेपर शुरू हो रहे हैं। मेरा पहले ही पढ़ाई का बहुत नुकसान हो चुका है, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ और किसी किस्म का तमाशा नहीं चाहती। उसने नरमी मगर संजीदगी से ये बात पूरी हवेली वालों को डाइनिंग टेबल पर सुना दी थी। ठीक है दानियाल बेटा, तुम इसे यूनिवर्सिटी छोड़ देना। इब्राहिम शाह ने दानियाल से कहा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। कुछ देर बाद वो दानियाल के साथ गाड़ी में बैठी थी। वो बिल्कुल खामोश थी, उसने कोई तमाशा नहीं किया था, और उसकी यही खामोशी दानियाल को हजम नहीं हो रही थी। वह जानता था कि उसके दिमाग में कुछ न कुछ जरूर चल रहा है, न जाने वो क्या खिचड़ी पका रही थी। वो सारा रास्ता खामोश और पुरसकून, मगर उसकी यही पुरसकूनी दानियाल को किसी आने वाले तूफान का खदशा दे रही थी। खैर यूनिवर्सिटी आ गई। वो गाड़ी से बाहर निकलती इससे पहले ही उसकी कलाई दानियाल के हाथ में आ चुकी थी। उसने बेतासुर निगाहों से दानियाल को देखा। अगर मैं तुम पर कोई रोक टोक करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कैद कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारी हिफाजत के लिए सब करता हूँ। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई खन्नास भरा है तो इसे निकाल दो, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। बेहतर होगा मुझे और हमारे रिश्ते को समझने के लिए वक्त निकालो, मगर कोई बेवकूफ़ी मत करना। उसकी आंखों में बेहद संजीदगी थी। दामिल ने कुछ भी कहे बगैर अपनी कलाई छुड़वाई, गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। 2 बजे लेने आऊंगा, खबरदार अगर बिना बताए कहीं गई। जाते जाते भी दानियाल उसे तंबीह करना नहीं भूला था। दूसरी तरफ वो भी दामिल थी, अपने नाम की एक किरण। उसने जो ठान ली थी वो अपनी मर्जी से ही करनी थी। दानियाल उसे यूनिवर्सिटी ड्रॉप करके जा चुका था। ये 11 बजे का वक्त था जब दामिल और रामीन दोनों यूनिवर्सिटी से बाहर निकले। दामिल रामीन की गाड़ी में बैठी हुई थी। फिलहाल मैं तुम्हें अपनी एक कजन के घर छोड़ दूंगी, फिर हम रात को वहां से निकलेंगे, क्योंकि तुम्हारा कजन, मेरा मतलब है तुम्हारा शोहर, बहुत पावरफुल है। तुम्हें ढूंढने के लिए वो जमीन आसमान एक कर देगा। हमें बहुत संभल कर रहने की जरूरत है, ठीक है? हम रात के अंधेरे में यहाँ से निकलेंगे। वो उसे हदायत देते हुए गाड़ी चला रही थी, जबकि दामिल ने इस बात में सर हिला दिया। उसने अपना मोबाइल जानबूझकर हवेली में छोड़ दिया था ताकि दानियाल उसे ट्रेस न कर सके। तकरीबन 1 घंटे बाद रामीन की गाड़ी एक नफीस और खूबसूरत बंगले के बाहर जाकर रुकी। दामिल रामीन की हदायत पर उसके साथ चलती हुई लाउंज तक आई। ये सबा है, मेरी खाला की बेटी, और सबा ये मेरी दोस्त है। इसे रात तक अपने पास रखो, मैं रात को इसे ले जाऊंगी। ये बहुत बड़ी मुसीबत में है, इसलिए किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये यहाँ है, ओके? अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। 10 मिनट बाद ही रामीन वहां से निकल गई थी, क्योंकि अगर वो यूनिवर्सिटी से गायब रहती तो सबसे पहला शक उसी पर जाता। खैर वो वापस यूनिवर्सिटी आ गई। न जाने क्यों दामिल को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, मगर वो सबा के साथ बातों में मसरूफ हो गई। सबा भी रामीन की तरह बहुत बातूनी थी, और फौरन ही उसने दामिल के साथ दोस्ताना लहजा अपनाया। 2 बज चुके थे और दानियाल दामिल को यूनिवर्सिटी से पिक करने के लिए आ चुका था। वो काफी देर से पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क किए खड़ा था, मगर दामिल आने का नाम ही नहीं ले रही थी। थका कर उसने कॉल करने की कोशिश की, मगर उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। अब दानियाल का दिमाग घूम गया। वो फौरन गाड़ी से उतरा और यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो गया। सीधा दामिल के डिपार्टमेंट में पहुंचा, जहाँ के प्रोफेसर उसको जानने वाले थे।
उनसे दामिल के बारे में पूछा तो जवाब मिला, दामिल तो आज यूनिवर्सिटी में आई ही नहीं। दानियाल ने बेयकीनी से कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं खुद उसे सुबह यूनिवर्सिटी के अंदर ड्रॉप करके गया था। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। दानियाल के जहन में उस वक्त अजीब गरीब वसवसे और ख्यालात गर्दिश कर रहे थे, मगर अपने ही ख्याल पर लानत भेजते हुए उसने शक को दूर करने की कोशिश की। प्रोफेसर ने कहा, हो सकता है मिस्टर शाह वो यूनिवर्सिटी आई हो, मगर क्लास में नहीं आई हो। ये सुनते ही दानियाल का दिमाग घूम गया। उसने फौरन उसका मोबाइल ट्रेस करवाया तो पता चला कि मोबाइल हवेली में ही मौजूद था। उफ, समझ नहीं आ रही इस लड़की का क्या करूं। सबसे पहले उसने खुद को संभाला और वापस हवेली आया। उसका मोबाइल ढूंढा तो वो कमरे में ही पड़ा था। ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। उसने मोबाइल से दामिल की दोस्तों के नंबर्स देखने शुरू किए तो एक ऐसा नंबर मिला जिस पर सबसे ज्यादा कॉल्स की गई थी, और वो रामीन का नंबर था। दानियाल ने फौरन उस नंबर की तफसीलात निकलवाई तो पता चला कि ये एक बिजनेसमैन की बेटी का नंबर है। वो फौरन उनके घर पहुंचा, मगर वहां जाकर मालूम हुआ कि उनकी बेटी तो 2 दिन के लिए शहर से बाहर गई हुई है। अब उसका दिमाग मजीद घूम चुका था। उसने दामिल को कितनी बार समझाया था कि अकल से काम ले, मगर लगता था उस लड़की को जब तक ठोकर न लगे उससे अकल नहीं आनी थी। दानियाल को सांस लेने में भी दुश्वारी महसूस हो रही थी। सबसे पहली बात वो उसकी बीवी थी, उसकी इज्जत थी, और दूसरी बात वो उसकी मोहब्बत थी। अगर उसे कुछ हो गया तो शायद दानियाल भी जी ना सके। फौरन उसने अपने एक दोस्त को फोन किया जो पुलिस ऑफिसर था। वो ये सारा काम मुकम्मल राजदारी से करना चाहता था, मगर फिर भी बीजान आका जान और पुप्पो जान को मालूम हो ही गया था कि दामिल लापता हो चुकी है। पुप्पो का तो दिल चाह रहा था कि रामी जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी ने उन्हें जीते जी मारने का फैसला कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ मगरिब के बाद रामीन सबा के घर आई और दामिल के साथ गाड़ी में बैठ गई। अब न जाने वो दोनों कहाँ जा रही थी। उनकी गाड़ी शहर के कच्चे पक्के रास्तों से होती हुई एक ऐसी अजीबो गरीब जगह पर आकर रुक गई जिसे दामिल ने शायद अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। ये हम कहाँ आ गए हैं रामीन? उसने कुछ हैरत से रामीन की तरफ देखते हुए पूछा। रामीन के चेहरे पर एक बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट थी। फिक्र मत करो मेरी जान, यहाँ तुम्हारी सारी मुसीबतों का हल है। दामिल का दिल अनजाने खौफ से तेजी से धड़कने लगा। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बुरी तरह घबरा चुकी थी। फिक्र मत करो, यहाँ किसी से मिलना है जिसके पास तुम्हारे मसले का हल है। बस कुछ मिनट, फिर हम वापस चलेंगे, ठीक है? रामीन ने उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे हौसला दिया तो दामिल को भी कुछ सुकून महसूस हुआ। वो दोनों गाड़ी से बाहर निकली और पैदल चलते हुए एक तंग से रास्ते से अंदर की तरफ बढ़ने लगी। वहां हर तरफ लड़कियां नामुनासिब लिबास में खड़ी थी, जबकि कुछ अजीब हुलिये वाले बिगड़े हुए लड़के भी मौजूद थे। दामिल अंदर तक काम रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि वो किसी बहुत बड़ी गलती का हिस्सा बन चुकी है। कुछ ही देर बाद वो दोनों एक अजीब से कमरे में जाकर बैठ गई, जहाँ रंग बिरंगे पर्दे लगे हुए थे और जमीन पर मुख्तलिफ रंगों के कालीन बिछे हुए थे। एक तरफ मौसीकी का सामान रखा था, जैसे वहां अक्सर महफिलें सजती हों। उनके सामने एक मोटी सी औरत बैठी हुई थी, जो मुंह में पान चबाते हुए सर से पांव तक दामिल का जायजा ले रही थी। उसकी नजरें दामिल को अजीब सी बेचैनी में मुब्तला कर रही थी। तो ये है मसला। उसने मायनी खेज मुस्कुराहट के साथ रामीन की तरफ देखा। रामीन ने मुस्कुराकर इस्बात में सर हिला दिया। बताओ फिर इस मसले के हल के लिए क्या चाहिए? रामीन के चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। पूरे 10 लाख। दामिल अब तक ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हो क्या रहा है, और ये दोनों किस किस्म की पहेलियां बुझा रही हैं। ये कुछ ज्यादा नहीं है। बानोबाई ने सवालिया अंदाज में अपनी भवें उठाई। और ये दोनों किस किस्म की पहेलियां बुझा रही हैं। ये कुछ ज्यादा नहीं है। बानोबाई ने सवालिया अंदाज में अपनी भवें उठाई। बिल्कुल नहीं। ये तुम्हें करोड़ों का फायदा देगी। अब तक जितना माल लाई हूँ, क्या इस सब ने तुम्हें फायदा नहीं दिया? बानोबाई ने इस बात में सर हिला दिया। अब मुझे पैसे दो ताकि मैं जाऊं। बानोबाई ने बात समझते हुए सर हिलाया और फिर एक लड़की को इशारा किया। तकरीबन 10 मिनट बाद रामीन के हाथ में पैसे आ चुके थे। रामीन उठ खड़ी हुई तो दामिल भी फौरन उसके साथ खड़ी होगी, मगर बानोबाई ने लड़कियों को इशारा कर दिया। तुम कहाँ जा रही हो? उनमें से एक औरत ने पूछा। दामिल के अंदर खौफ की लहरें दौड़ने लगी। क्या मतलब कहाँ जा रही हूँ? वापस जा रही हूँ। अपने खौफ को पीछे धकेलते हुए उसने मजबूत लहजे में जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर बानोबाई हंस पड़ी।
यहाँ جو ایک بار آتا ہے اپنی مرضی سے آتا ہے، مگر یہاں سے جاتا ہماری مرضی سے ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ دامل کے قریب آئی اور اس کے نازک چہرے کو 2 انگلیوں سے چھوا۔ دامل کے دماغ میں جیسے دھماکے ہونے لگے۔ رامین، تم کہاں جا رہی ہو؟ مجھے بھی تو لے کر جاؤ۔ اس نے گھبرا کر رامین کو آواز دی، جو اس وقت دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ رامین پلٹ کر کھڑی ہوئی اور پھر ایک زوردار کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ او دامل، میری جان، تم کتنی بھولی ہو۔ تم جیسی لڑکیاں جو اپنے شوہر کی نہیں ہو سکتی، وہ کسی کی دوستی کے لائق کیسے ہو سکتی ہیں؟ اب سے یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، یہی رہو۔ گڈ بائے۔ رامین نے نفرت بھرے انداز میں سر جھٹکا اور باہر نکل گئی۔ دامل کے سر پر جیسے آسمان پھٹ پڑا۔ رامین پلیز واپس آؤ، کہاں جا رہی ہو رامین؟ وہ چیخنے چلانے لگی، مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی کو ایک ایسے اندھیرے راستے پر لے آئی تھی جہاں سے واپسی کا راستہ اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بانو بائی اس کے سامنے آ کھڑی ہوگی۔ بہت ہی بے وفا دوست نکلی وہ تمہاری، تمہیں یہاں بیچ گئی۔ دامل ساکت کی ساکت رہ گئی۔ اسے جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ رامین جو اس کی سب سے اچھی دوست تھی، اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی۔ اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا، مگر بظاہر وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ یہ کوٹھا ہے، آج کے بعد تم یہی کام کرو گی، اور جانتی ہو نا یہاں کیا کام ہوتا ہے؟ بانو بائی نے اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ ڈالی اور پھر حکم دیا، جاؤ اسے کمرے میں لے جاؤ۔ اس نے 2 لڑکیوں کو اشارہ کیا تو وہ دامل کے دونوں کندھے تھام کر اسے کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ دامل بالکل ساکت ہو گئی تھی، جیسے اس کا پورا وجود پتھر کا ہو گیا تھا۔ وہ اب تک یہی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا گیا ہے، اور جس دوست پر اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا، وہ اسے اس اندھیری دلدل میں کیسے دھکیل گئی۔ وہ دونوں اسے کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھی اور باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا تاکہ وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ دامل جو آج تک یہی کہتی آئی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے گی، آج اسی جگہ قید ہو چکی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ رامین نے اسے اتنا بڑا دھوکہ دے دیا ہے۔ رامین کا وہ پیار، محبت اور دوستی کا دکھاوا سب جھوٹ تھا۔ کتنے ہی آنسو تھے جو دامل کی آنکھوں سے بہہ کر اس کے گالوں کو بھگونے لگے تھے۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ اسے دانیال کے الفاظ یاد آنے لگے، اگر میں تم پر کوئی روک ٹوک کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں قید کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تمہاری فکر ہے، تمہاری حفاظت کے لیے یہ سب کرتا ہوں۔ اگر تمہارے دماغ میں کوئی خناس بھرا ہے تو اسے نکال دو، ورنہ بہت پچھتانا پڑے گا۔ بہتر ہوگا مجھے اور ہمارے رشتے کو سمجھنے کے لیے وقت لو، مگر کوئی بے وقوفی مت کرنا۔ یہ الفاظ یاد آتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکی تھی۔ ساری دنیا میں اگر اس کا کوئی حقیقی رکھوالا تھا تو صرف دانیال ہی تھا، مگر وہ اسی کو ہی دھوکہ دے کر یہاں آ گئی تھی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، پلیز دانیال، مجھے یہاں سے باہر نکال لیں۔ وہ تڑپ تڑپ کر ان بند دیواروں کو دیکھتی ہوئی اسے پکارنے لگی۔ آج اسے اپنی ہر غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ بس کسی طرح دانیال یہاں آ جائے، وہ اس سے اپنی ہر ایک غلطی کو معافی مانگ لے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس سے کتنی بڑی غلطی سرزد ہو چکی ہے، مگر چند ہی گھنٹوں میں اسے اس کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس کی نیند، سکون، بھوک اور پیاس، سب کچھ اڑ چکا تھا۔ وہ صرف اور صرف یہاں سے باہر نکلنا چاہتی تھی، کیونکہ اب وہ بہت اچھی طرح جان چکی تھی کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ وہ دانیال شاہ کی بیوی تھی اور اسے اپنی عزت کی حفاظت کرنی تھی۔ آج اسے سمجھ آیا تھا کہ نامحرم سے دوستی کس قدر خطرناک ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی غیر لڑکا دوستی کی آڑ میں آپ کو چھوئے تو شاید انسان اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دے، لیکن جب وہی شخص زبردستی ہاتھ لگائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ اور اذیت ہے۔ دامل کسی صورت اس سب کی روادار نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے ہر حال میں یہاں سے نکلنا تھا۔ پورے 24 گھنٹے گزر چکے تھے اور دامل کے غائب ہونے کے بعد سے رامین پر کڑی نظر رکھی جا رہی تھی۔ دانیال کے گارڈز نے رامین کے گھر کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتی فوراً دانیال کو اطلاع مل جاتی۔ اگلے دن عصر کے بعد وہ اپنے بنگلے میں داخل ہوئی تو گارڈز نے فوراً دانیال کو اطلاع دے دی اور اگلے ہی 1 گھنٹے میں دانیال وہاں موجود تھا۔ مغرب ڈھل چکی تھی جب وہ اس بنگلے میں داخل ہوا۔ رامین کو صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ کوئی اس سے ملنے آیا ہے، مگر اپنے سامنے دانیال شاہ کو دیکھتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ دامل کہاں ہے؟ دانیال نے انتہائی ضبط کے ساتھ سوال کیا۔ رامین کا اعتماد کمال کا تھا۔ میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے۔ وہ فوراً مکر گئی۔ دیکھو مجھے بتا دو وہ میری بیوی کہاں ہے، اگر اسے خراش بھی آئی تو سب سے پہلے تمہارا یہ حسین چہرہ تباہ کروں گا۔
दानियाल शाह इतने गुस्से में धड़ा कि रामीन के अंदर खौफ की लहर दौड़ गई, मगर उसने अपने चेहरे पर खौफ जाहिर नहीं होने दिया। तो तुम नहीं बताओगी कि वो कहाँ है? दानियाल को यकीन था कि ये लड़की आसानी से नहीं मानेगी, इसलिए उसने अपने गार्ड्स को इशारा किया। अगले ही 2 मिनट में गार्ड्स रामीन के बाप के सामने खड़े थे और एक गार्ड्स ने उसके सर पर बंदूक रख दी। आप अपनी बेटी से कहें कि ये बताए कि मेरी बीवी कहाँ है, वरना 2 मिनट के अंदर ये गार्ड का सर गोलियों से भर देगा। दानियाल आज रहम करने के मूड में नहीं था। वैसे तो वो एक हंसमुख और खुश मिजाज इंसान था, मगर ये मामला उसकी बीवी का था। रामीन बता क्यों नहीं रही? कहाँ है उसकी बीवी? उसके बाप ने गुस्से से पूछा। मैं नहीं जानती बाबा। रामीन के ढीठपन की भी कोई इंतहा नहीं थी। दानियाल ने गार्ड्स को इशारा किया और अगले ही लम्हे रामीन के घर के लाउंज में गोली की आवाज गूंज उठी। रामीन इतनी खौफसदा हुई कि फौरन अपने कानों पर हाथ रख लिए। बता रही हो या अगली गोली तुम्हारे सर में मारूं? दानियाल गुस्से से चीखा। रामीन के बाप का खून खुश्क हो चुका था। रामीन, अगर तुमने 1 मिनट के अंदर नहीं बताया कि वो लड़की कहाँ है तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, उसके बाप ने भी गुस्से से कहा। वो जानता था कि रामीन की सबसे बड़ी कमजोरी वो खुद था, मगर रामीन ने फिर भी अपना मुंह नहीं खोला। आखिरकार एक गार्ड ने दोबारा उसके सर पर बंदूक रख दी तो उसका सारा एतमाद हवा हो गया। बता रही हूँ, पहले गन पीछे करो। वो फौरन हड़बड़ाकर बोली, पहले बताओ। दानियाल ने गुस्से से उसकी आंखों में आंखें गाड़ दी। कोठे पर है। ये सुनते ही दानियाल शाह के कदम जैसे एक लम्हे के लिए डगमगा गए। क्या बकवास कर रही हो? उसने किस तरह अपने गुस्से को काबू में रखा ये सिर्फ वही जानता था। रामीन ने बेहिसी से कहा, सच कह रही हूँ। बहुत सर खाती थी मेरा। बेवकूफ लड़की, अकल तो उसमें नाम की भी नहीं थी। मैं उसे कोठे पर बेच आई। अच्छी खासी खूबसूरत थी, मोटी असामी मिल गई। उसकी आंखों में अब भी पैसों की चमक थी। रामीन के बाप का हाथ उठा और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। बेवकूफ लड़की, तुम्हें पैदा करके पाल पोस कर इसलिए इतना बड़ा किया कि तुम दूसरों की बेटियों के साथ ये सब करती फिरो? वो गुस्से से चीखे। दानियाल ने अपने गार्ड्स को इशारा किया। वो इशारा समझ चुके थे और अगले ही कुछ देर बाद पुलिस रामीन को गिरफ्तार करके ले जा रही थी। छोड़ो मुझे दानियाल शाह, इन सब में तुम्हारी बीवी का कसूर है। मुझे क्यों पकड़ रखा है? वो चीखती चिल्लाती रही, मगर पुलिस उसे अपने साथ ले जा चुकी थी। दानियाल के सर पर जैसे आसमान भर पड़ा था। अभी उसे दामिल को इस जहन्नुम से भी निकालना था। दामिल को इस जहन्नुम में आए 24 घंटे गुजर चुके थे, मगर उसका मसीहा न जाने कहाँ था। वो अब तक नहीं आया था। उसके बावजूद दामिल का दिल गवाही दे रहा था कि वो जरूर आएगा और उसे इस जहन्नुम से निकाल कर अपने साथ ले जाएगा। दो लड़कियां न जाने उसके चेहरे पर जबरदस्ती क्या क्या लगा रही थी, मगर वो पत्थर की तरह खामोश बैठी रही। फिर उसे जबरदस्ती उठाकर बाहर ले जाया गया। सेहनुमा कोठे में इस वक्त महफिल अपने अरूज पर थी। ये मंजर किसी कयामत से कम न था। कितने ही गैर मर्दों के दरमियान वो नंगे सर खड़ी थी और उसे दानियाल शाह के अल्फाज याद आ रहे थे। वो कैसे उसे बार बार दुपट्टा लेने के लिए कहता था, मगर वो हर बार उसकी बात अनसुनी कर देती थी। अब उसकी बारी आ चुकी थी। दो लड़कियों ने उसे बाजुओं में मजबूती से दबोच रखा था ताकि वो कहीं भाग कर ना जाए। ये आज की सबसे स्पेशल पीस है। बिल्कुल अनछुई लड़की है। मुंह मांगी कीमत लूंगी। बानो बाई ने पान चबाते हुए सामने बैठे अमीर रईसों को देखा। वहां कम से कम 25-23 मर्द मौजूद थे और दामिल तो शर्मिंदगी के मारे अपना सर तक नहीं उठा पा रही थी। बोली शुरू हो चुकी थी। इसी लम्हे दानियाल अंदर दाखिल हुआ और अपनी बीवी को इस तरह बेआबरू इतने सारे मर्दों के दरमियान देखकर उसका खून खोल उठा। उसकी आंखों की सुर्खी लम्हा ब लम्हा बढ़ने लगी, मगर यहाँ वो किसी भी किस्म का तमाशा अफोर्ड नहीं कर सकता था। 15 लाख, उसकी इज्जत और आबरू की बोली लगाई जा रही थी और वो सर झुकाए बेआवाज आंसू बहा रही थी। 20 लाख, बानो बाई के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी होने लगी। 25 लाख, आहिस्ता आहिस्ता बोली की रकम बढ़ती चली गई। 30 लाख और फिर 40 लाख की बोली के बाद महफिल में अचानक खामोशी छा गई। क्या कोई है ऐसा जो इससे ज्यादा बोली लगा सके? बानो भाई ने ऊंची आवाज में पूछा, मगर दूसरी तरफ खामोशी छाई रही। तो ठीक है, फिर ये लड़की, इससे पहले कि बानो भाई अपनी बात मुकम्मल करती, भरे मजमे में एक से आवाज आई, 50 लाख। सबके चेहरे हैरत से इस आवाज की सिमत मुड़ गए, जहां दानियाल शाह ने यकटुक दामिल को देखता हुआ खड़ा हो गया था। इस आवाज को सुनते ही दामिल का सर शर्मिंदगी, दुख, तकलीफ, जिल्लत और रुसवाई के खौफ से मजीद झुक गया। उसे लगा कि आज के बाद वो कभी इस शख्स से नजरें नहीं मिला पाएगी। भानुबाई तो 5 गुना फायदे की रकम सुनकर
लट्टू की तरह खुश हो गई थी। दानियाल सारे हजूम को चीरता हुआ उसके करीब पहुंचा, अपने गले से चादर उतारी और उसके कंधों पर गिर्द लपेट दी। फिर उसका हाथ थाम लिया। मेरा आदमी तुम्हें पैसे दे देगा। बानोबाई से इतना कहकर वो उसे अपने साथ लिए कोठे से बाहर निकल गया। आज उसकी गिरफ्त में ना गुस्सा था, ना नाराजगी, और ना ही पहले जैसी अपनायत। उसने जैसे किसी अजनबी का हाथ थाम रखा था। वो उसे गाड़ी तक लाया। बहुत आराम से दरवाजा खोला तो दामिल खुद ही खामोशी से अंदर बैठ गई। दूसरी तरफ जाकर दानियाल ने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी को इस मनहूस जगह से बाहर निकाल कर ले गया। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। दामिल दानियाल की चादर को अपने कंधों के गिर्द मजबूत से लपेटे, सर झुकाए और दरवाजे से सर टकाए भी आवाज रोने में मसरूफ थी। उसे लग रहा था कि अब वो सारी जिंदगी इस शख्स से नजरें नहीं मिला पाएगी। गाड़ी में खामोशी इसी तरह कायम रही। तकरीबन आधे घंटे बाद गाड़ी शाह हवेली के पोर्च में जाकर रुकी। दानियाल गाड़ी से बाहर निकला, दामिल की तरफ आया और उसकी साइड का दरवाजा खोल दिया। दामिल जैसे गाड़ी सोच से जा चुकी थी। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए, गाड़ी से उतरी और किसी मुजरिम की तरह शिकस्ता कदमों से दानियाल के पीछे हवेली के अंदर दाखिल होगी। जैसे ही वो लाउंज में पहुंची, पुप्पो का खून खोल उठा। वो फौरन सोफे से उठी और एक जोरदार थप्पड़ दामिल के चेहरे पर दे मारा। इसीलिए तुम्हें इतनी सारी आजमाइशों के साथ पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था कि एक दिन मेरा सर झुका दो। ये कहते हुए उनके लहजे में रोने की नमी उतर आई और उनकी आंखें भी आंसुओं से भर गई। दाबिल भी खामोश खड़ी आंसू बहाती रही। दानियाल ने आगे बढ़कर पुप्पो को दोनों कंधों से थाम लिया। पुप्पो प्लीज, उसने नफी में सर हिलाते हुए जैसे उन्हें संजीदगी से समझाया। किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, ये सारा मेरा कसूर है। अगर मैं जबरदस्ती निकाह ना करता तो शायद ये इस हद तक न जाती, लेकिन अब मैं किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। आज से मेरी तरफ से ये आज़ाद है। जब चाहेगी मैं उसे इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा, और खबरदार किसी ने उससे कुछ भी कहा तो। बेसातासुर लहजे में ये कहते हुए दानियाल अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। दानियाल को जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया। वो उसे छोड़ने की बात कर रहा था। उसे तो दानियाल से माफी मांगनी चाहिए थी, मगर वो अब तक पत्थर बनी वहीं क्यों खड़ी रह गई थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ वो फौरन दानियाल के पीछे भागी। वो अपने कमरे की दहलीज तक पहुंची तो देखा दानियाल ड्रेसिंग के सामने खड़ा अपनी आंखों को गौर से देख रहा था। दामिल के कदमों की आहट पर उसने सर उठाया और दरवाजे की तरफ देखा, जहां वो टूटे बिखरे वजूद और बिखरी हुई आंखों के साथ खामोश खड़ी थी। दानियाल की आंखें बेतासुर थीं, मगर उनमें सुर्खी नुमाया थी। उनकी सुर्खी देखकर दामिल अंदर तक कांप गई। मैं वो उसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर बुरी तरह नाकाम रही। दानियाल चंद कदम चलकर उसके सामने आ गया। वो बुरी तरह रो रही थी। आपने मेरी इज्जत बचाई और मैं वो कुछ कहना चाह रही थी, मगर अल्फाज जैसे उसके हलक में अटक गए थे। दानियाल का दिल कमजोर पड़ रहा था, मगर वो उसे जबरदस्ती अपने साथ नहीं बांध सकता था, क्योंकि जिस रिश्ते में जबरदस्ती शामिल हो जाए उस रिश्ते की खूबसूरती खत्म हो जाती है। तुम्हें किसी किस्म की वजाहत देने की जरूरत नहीं। तुम मेरी इज्जत हो। मैंने ये निकाह तुम्हारे भले के लिए ही किया था। मुझे ये मुनासिब नहीं लगा कि कोई गैर मर्द तुम पर अपनी मर्जी मुसल्लत करे, मगर ये मैं नहीं जानता था कि निकाह के बाद शोहर बनकर भी किसी पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं की जाती। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम्हारा अपना इख्तियार है। जैसे मर्जी जियो। अगर तुम मुझसे कोई ताल्लुक कायम नहीं करना चाहती तो कोई मसला नहीं। मैं आज के बाद तुम पर अपनी राय मुसल्लत नहीं करूंगा। आज के बाद तुम्हें किसी कैद खाने में रहने की जरूरत नहीं। तुम जहाँ चाहो जा सकती हो, जहाँ चाहो रह सकती हो। तुम समझदार हो, अपना अच्छा बुरा समझ सकती हो। मेरी तरफ से तुम्हें कोई भी मजीद परेशानी नहीं होगी। एक एक लफ्ज इंतहाई संजीदगी और बेतासुर लहजे में कहने के बाद वो ड्रेसिंग रूम में जाकर बंद हो गया। दामिल का दिल टूट कर रेजा रेजा हो गया। वो उसे इसलिए नहीं छोड़ रहा था कि वो एक रात कोठे पर रहकर आई थी। वो जानता था कि दामिल पाक दामन है, मगर वो उसे इसलिए आज़ाद कर रहा था क्योंकि दामिल ये निकाह करना ही नहीं चाहती थी, और अब वो निकाह हो चुका था। दामिल का दिल चाहा कि वो धाड़े मार मार कर रोए, उसे बताए कि अब वो उसके साथ रहना चाहती है। उसे अकल आ गई है, उसे ठोकर लग चुकी है। वो जान चुकी थी कि जिंदगी गलत लोगों की सोहबत और गलत दोस्तियों में गुजार देने के बाद इंसान आखिरकार खाली हाथ रह जाता है, और वो खाली हाथ नहीं रहना चाहती थी। अब उसे समझ आ गई थी कि दानियाल शाही उसकी इज्जत का हकीकी रखवाला है।
काफी देर तक वो रोती रही मगर दानियाल बाहर नहीं निकला। आखिरकार वो अपने टूटे फूटे वजूद को संभालती हुई वापस पलटी और अपने कमरे की तरफ चली गई। शायद अब उसे लग रहा था कि इस कमरे पर भी उसका हक खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ दानियाल ड्रेसिंग के सामने खड़ा, दोनों हाथ मेज पर रखे झुका हुआ था और गहरी सांसें ले रहा था। उसकी आंखों की सुर्खी खतरनाक हद तक भर चुकी थी। कितना मुश्किल था अपनी ही मोहब्बत को अपने हाथों से खुद से दूर करना। इजहार के मामले में वो हमेशा ऐसा ही था, अपनी फीलिंग्स छुपा कर रखना जानता था। मगर दामिल से उसकी मोहब्बत आज भी वैसी ही थी। मोहब्बत जोर जबरदस्ती का नहीं, कुर्बानी का नाम है। और शायद यही उन दोनों के हक में बेहतर था। कुछ कहानियों के इख्तिताम खूबसूरत नहीं होते, शायद उनकी कहानी का इख्तिताम भी ऐसा ही होना था। 4 दिन शाह हवेली पर किसी सोगवारियत की तरह गुजर गए। इन 4 दिनों में दामिल और दानियाल का एक दूसरे से कोई सामना नहीं हुआ। पप्पो का गुस्सा भी अब काफी हद तक ठंडा पड़ चुका था, जबकि बीजान तो हमेशा से दामिल को अपनी बेटी की तरह अजीज रखती थी। उनकी अपनी कोई बेटी नहीं थी, सिर्फ एक बेटा था, और बरसों से उनकी ख्वाहिश थी कि दामिल उनकी बहू बने। मगर यह रिश्ता भी एक अजीब और बेढंगे अंदाज में कायम हुआ था। अपने कमरे में सोफे से सर टिकाए दामिल बालकनी से बाहर फैले आसमान को देख रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वह जैसे ही ख्यालों की दुनिया से वापस आई और पलटकर दरवाजे की तरफ देखा तो बीजान दरवाजे में खड़ी थी। दामिल ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाने की कोशिश की मगर नाकाम रही। बीजान अंदर दाखिल हुई और उसके पास ही सोफे पर बैठ गई। बेटा, ये क्या बात हुई है? तुम इस कमरे में क्यों रह रही हो? तुम्हारा कमरा अब वो है जहाँ तुम्हारा शोहर रहता है। उन्होंने ममता भरी मोहब्बत से उसके चेहरे पर हाथ फेरा तो दामिल की आंखों में नमी उभर आई। एक वक्त था जब वो इस औरत को पुराने जमाने की अम्मा समझा करती थी, मगर आज वही औरत उसकी माँ बनकर उसे समझा रही थी। आंखों में टहरी नमी आखिरकार आंसू बनकर बह निकली। आपके सामने ही तो था। उन्होंने क्या कहा था? वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते। दामिल ने नजरें चुरा ली। विचार ने नफी में सर हिलाया। उसने वो कहा जो तुम सुनना चाहती थी, मगर क्या तुमने वो सुना जो वो कहना चाहता था? बीजान की बात पर दामिल उलझ गई। मतलब? उसकी आंखों में सवाल उभर आया। बेटा, जरूरी नहीं कि सामने वाला हमेशा हमारी ही मर्जी का जवाब दे। कभी कभी वो हमारी मर्जी का जवाब देकर अपनी मोहब्बत छुपा रहा होता है। वो जो कुछ कर रहा है तुम्हारे लिए ही कर रहा है। तुम अब तक नहीं समझ सकी कि उसने पिछले 1 साल में जो कुछ किया वो सिर्फ तुम्हारी खातिर किया। उसे लगता था कि तुम्हारी इज्जत को खतरा है, इसलिए वो तुम्हारा शोहर बन गया। मगर अब उसे लगता है कि शोहर बनने के बाद वो तुम्हें तकलीफ दे रहा है। तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो, इसलिए वो तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर रहा है। वो तो हर कदम पर तुम्हारी खुशी को अजीज रख रहा है। मगर तुम क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक बार दानियाल शाह के दिल में झांक कर देखना चाहिए कि आखिर वो चाहता क्या है? जरूरी नहीं कि हर बार हमें वही मिले जो हम चाहते हैं। कभी कभी दूसरों की खुशी की भी परवाह करनी पड़ती है। हर बार ये जरूरी नहीं कि सामने वाला ही हमें खुशी दे। एक बार हमें भी तो उसकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। बेजान ने उसे इंतहाई आसान और सादा लफ्जों में समझाया तो उनके अल्फाज दामिल के सीने में जैसे ठंडक बनकर उतरने लगे। वो उनकी बात का मुकम्मल मफहूम तो शायद ना समझ सकी, मगर इतना जरूर जान गई थी कि बीजान उससे कुछ बहुत अहम समझा रही है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ गई होगी और अब वापिस अपने कमरे में जाओ। अपना हक कभी नहीं छोड़ते, और बेटा, ये रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। एक बार टूट जाएं तो फिर दोबारा जुड़ना आसान नहीं होता। वक्त रहते उन्हें संभाल लो, समेट लो। इसी में तुम्हारा फायदा है। ये सारी हवेली तुम्हारी है। कल को हमारे बाद तुमने ही यहाँ राज करना है। आज तुम्हें ये कैद खाना लग रही है, कल यही जगह तुम्हें सुकून देगी। बीजान की आखिरी बात पर दामिल शर्मिंदा होगी और उसकी नजरें झुका ली। बीजान ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा और फिर कमरे से बाहर निकल गई। दामिल काफी देर तक खामोश बैठी उनके अल्फाज को समझने और अपने दिल में उतारने की कोशिश करती रही। फिर जैसे किसी मजबूत ओहद के साथ उठ खड़ी हुई और वापस दानियाल के कमरे की तरफ चल दी। हाँ, अब यही उसका कमरा था। दानियाल शाह की हर चीज पर उसका हक था, क्योंकि वो उसका शोहर था, और दामिल ने फैसला कर लिया था कि वो ये रिश्ता खत्म नहीं होने देगी। अगर वो इस रिश्ते को बिगाड़ सकती थी तो उसे संवारने की कोशिश भी कर सकती थी। वो कम से कम एक बार दिल से कोशिश तो कर ही सकती थी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मगरिब के बाद दानियाल ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ तो आज कमरा कुछ ज्यादा ही सलीके से लिपटा हुआ नजर आ रहा था। हर चीज अपनी जगह,
बिल्कुल वेल सेट थी। वो कुछ हैरान हुआ, फिर सर झटक कर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा, मगर अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। सारी अलमारियां खुली पड़ी थी और दामिल जमीन पर कपड़ों के दरमियान बैठे उन्हें तय कर रही थी। कितने ही पल तो वो यकीन ही न कर पाया कि दामिल उसके कमरे में मौजूद है। फिर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है, उसे खुशगवार हैरत का झटका लगा। ये मंजर तो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था, जो आज हकीकत में उसकी आंखों के सामने था। किसी खास एहसास के तहत दामिल की नजर ऊपर उठी, तो उसे देखकर वो रस्मी सा मुस्कुराई। आप आ गए? वो तो उस तरह पूछ रही थी जैसे दोनों के दरमियान बहुत अच्छी बाउंडिंग और अंडरस्टैंडिंग हो। आज वो उसे एक के बाद एक झटके दिए जा रही थी। मैं तो रोज ही आता हूँ, ये तुम क्या कर रही हो? होश में आते ही वो कुछ संजीदगी से सवाल कर बैठा। दामिल ने नासमझी से कंधे उचकाए। क्या मतलब? आपको नजर नहीं आ रहा काम कर रही हूँ? आम से लहजे में कहते हुए वो उठी और कपड़े अलमारी में सेट करने लगी। अंधा नहीं हूँ, नजर तो मुझे भी सब आ रहा है। तुम मेरी बात का मतलब साफ समझ रही हो? तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? इस बार दानियाल ने खुले लफ्जों में सवाल पूछा। दामिल उसकी तरफ पलटी और बोली, शायद आप भूल रहे हैं, जब शादी की जाती है तो बीवी भी अपने शौहर के साथ ही कमरे में रहती है। तो ये आपका कमरा है, तो अब इतना ही मेरा भी कमरा है। बेजारी से सर झटकते हुए वह दोबारा अपने काम में मगन होगी। दानियाल शाह उससे ज्यादा झटके बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो आगे बढ़ा और हैरानी से उसका बाजू पकड़कर उसे अपने सामने किया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? फिक्र में डूबी आवाज में पूछा तो दामिल को न जाने क्यों एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी, मगर उसने महारत से छुपा ली। बिल्कुल, अगर यकीन नहीं आ रहा तो माथा छू कर देख ले। दामिल ने फौरन अपनी खूबसूरत चमकती हुई सफेद पेशानी उसके सामने कर दी। दानियाल गड़बड़ा गया। नहीं, हो चुका यकीन। वो फौरन पीछे हट गया। ओह, तो ये डरता भी है मुझसे। दामिल को जैसे सुकून के साथ साथ उसकी घबराहट में मजा भी आने लगा। मुझे लगता है तुम गलती से कमरे का रास्ता भूल गई हो। ये दो कमरे छोड़कर तीसरा कमरा तुम्हारा है। वो शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया और कन अखियों से उसे ही देखता रहा। साथ ही अपना कोट उतारकर टाई खोलने लगा। उफ, एक तो आप भी ना इतनी जल्दी भूल जाते हैं। अभी तो मैंने बताया कि शादी के बाद बीवी शोहर के कमरे में रहती है और आज से मेरा यही कमरा है। अब आदत डाल नहीं, मैं हमेशा यही रहूंगी। उसकी तरफ चेहरा किए वो फिर ऊंची आवाज में बोली। फिर दोबारा सारे कपड़े उठाकर अलमारी में सेट करने लगी। वो आधे से ज्यादा काम कर चुकी थी। ड्रेसिंग रूम लिश्कारे मार रहा था। यकीनन वो काफी घंटों से कमरे की सेटिंग और सफाई में मसरूफ थी। न जाने क्यों दानियाल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सालों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई हो। यही तो ख्वाहिश थी उसकी कि वो अपने कमरे में दामिल को चलते फिरते, चीजें समेटते और अपने पन से रखते हुए देखे। दानियाल को खामोश पाकर दामिल की छठी हिस्स जो करना होगी। कहीं आप दूसरी शादी के ख्वाब तो नहीं देख रहे? अगर देख रहे हैं तो सब कुछ भूल जाएं, क्योंकि इस कमरे में मेरे सिवा कोई दूसरे आने से रही। कड़े तेवरों से घूरते हुए दामिल ने उस पर पूरा हक जताया। दानियाल का हाथ बेख्तियार अपने सीने पर गया। उसे तो मनी हार्ट अटैक आते आते बचा था। दामिल, या तो तुम ख्वाब देख रही हो या फिर मुझे ये सब ख्वाब लग रहा है। वो इतनी हैरानी से बोला कि इस बार दामिल ना चाहते हुए भी हंस पड़ी। हंसते हंसते उसकी आंखों में पानी जमा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों बचपन के सिविल मेट्स हों और उनके दरमियान कभी कोई मिसबिहेव मोमेंट हुआ ही ना हो। दानियाल के चेहरे पर इस सारे अरसे में पहली बार एक खूबसूरत मुस्कुराहट उभरी थी, जबकि उसकी खूबसूरत भूरी आंखें दामिल के दिल में उतरती चली गई। हंसने के बाद दामिल आहिस्ता से संजीदा हुई। आंखें अब भी आंसू से भरी हुई थी, मगर इस बार ये आंसू तकलीफ के थे। वो चंद कदम चलकर दानियाल के करीब आई और उसके सामने आ खड़ी होगी। दानियाल नरमी से मुस्कुराते हुए उसके खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। मैं जानती हूँ मैंने गलती नहीं बल्कि गुनाह किया है। मुझे अक्ल नहीं थी, मैं बेवकूफ़ थी, मगर अक्ल तो इंसान को ज़माने की ठोकरें खाकर ही आती हैं। और अब मुझे अक्ल आ गई है। मैं तो ये जानती ही नहीं थी कि अपनी बेवकूफ़ियों में मैं कितना खूबसूरत रिश्ता ख़राब कर रही हूँ। लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे एक मौका देंगे? संजीदगी से दानियाल की आंखों में आंखें डाले दामिन ने इल्तिजा की थी। दानियाल का हाथ में कान की अंदाज में उठा और उसने मोहब्बत से उसके गाल को छू लिया। अगर ये ख्वाब है तो मैं सारी जिंदगी इस ख्वाब से रिहाई नहीं चाहता। अगर ये हकीकत है तो फिर मैं अपनी सारी सल्तनत भी तुम पर निछावर कर सकता हूँ। वो खोए खोए लहजे में बोला तो दामिल की आंखों से आंसू बहकर गालों पर फिसलने लगे।
वो अपने सारे ज़ब्त के बंधन तोड़ती हुई आगे बढ़ी और दानियाल के सीने से लगकर बेआवाज़ रोने लगी। दानियाल जैसे अचानक होश में आया। उसकी आंखों में अब भी बेयकीनी थी। ये ज़बरदस्ती है। उसने मसनूई खफगी से दामिल को देखा जो उसके सीने से लिपटी हुई थी। आई एम सॉरी प्लीज, मुझे माफ कर दें, तकलीफ सदा आवाज में कहते हुए दामिल ने दानियाल के चेहरे पर भी तकलीफ के आसार नुमाया कर दिए। श्श, आज के बाद बिल्कुल भी नहीं रोना। मुझे तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत लगती हैं। इन खूबसूरत आंखों पर जुल्म मत करना। मैं नहीं जानता कब ये आंखें मेरे दिल में बस गई। मुझे इज़हार करना भी नहीं आता, मगर फिर भी तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। कब से लगने लगी हो ये नहीं जानता। हाँ, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि शायद तुम वो वाहिद औरत हो जिसके साथ मैं सारी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। दानियाल का एक हाथ उसकी कमर के गिर्द आ गया, जबकि दूसरे हाथ से वो नरमी से उसके बाल सहलाने लगा। दामिल ने हैरानगी से चेहरा उठाकर उसे देखा। अगर मैं इतनी अच्छी लगती थी तो फिर छोड़ने की बात क्यों की थी? इस सवाल पर दानियाल के चेहरे पर एक जख्मी सी मुस्कुराहट उभरी। मोहब्बत जोर जबरदस्ती का नाम नहीं है दामिल। ये तो एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है। उसे महबूब की मर्जी से हासिल करो तो हमेशा तरोताज़ा रहता है। लेकिन अगर ज़बरदस्ती किसी को अपना लो तो सिर्फ जिस्म मिल सकता है, रूह नहीं। ज़बरदस्ती के रिश्ते मुरझा जाते हैं और मुझे मुरझाया हुआ रिश्ता कबूल नहीं। दामिल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। फिक्र मत करें, मैं इस रिश्ते को कभी मुरझाने नहीं दूंगी। वो बिलवास्ता तौर पर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। वो खुद भी नहीं जानती थी कि कब ये नरम मिजाज और रहम दिल शख्स उसके दिल में उतर गया था। बाप की मौत ने दामिल को बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कर दिया था और उसके बाद उनके माली हालात भी काफ़ी मुतासिर हुए थे। शायद यही वजह थी कि वो बागी हो गई थी, मगर वक्त रहते वो संभल गई। या शायद उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसके पास एक मजबूत मुहाफिज मौजूद था जो उसकी इज्जत का रखवाला था। दानियाल को सालों बाद पहली बार अपने सीने में सुकून उतरता महसूस हुआ था। उसके सीने से लगी दामिल भी जैसे उसे एक अजीब सा सुकून दे रही थी। दानियाल ने मोहब्बत से उसके बालों पर लब रखी और उसे शिद्दत से खुद में भींच लिया। दामिल भी और मजबूती से उसे गले लग गई थी और फिर अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। इंसान को जब तक ठोकर न लगे उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता। लेकिन बेवकूफ़ वो इंसान है जो एक ही पत्थर से दो मर्तबा ठोकर खाए। दोस्ती और सोहबत इंसान की ज़िंदगी बना भी सकती है और तबाह भी कर सकती है। इसलिए हमेशा ख्याल रखिए कि आपके आसपास कैसे दोस्त हैं, कैसा माहौल है और जिन लोगों की सोहबत में आप वक्त गुजारते हैं उनके ख्यालात और आदत कैसी हैं, क्योंकि सोहबत इंसान की तरबियत और शख्सियत पर गहरा असर डालती है। ये असर मस्बत भी हो सकता है और मनफी भी। इसलिए अपनी सोहबत बेहतर बनाएं, क्योंकि अच्छी सोहबत आपको भी बेहतर इंसान बनाती है।